ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، مہنگائی کے آفٹر شاکس آنے لگے ہیں۔ کپڑے کی قیمت میں 10% تک اضافہ ہو گیا۔ پاور لوم مالکان ڈٹ گئے۔ صنعتوں کے شہر میں کپڑے کی سیل 8 روز سے بند ہے۔ تاجروں نے کپڑا مزید مہنگا ہونے کا اندیا دے دیا ہے۔ مہنگائی کے آفٹر شاکس آنے لگے۔ کپڑے کی قیمت میں 10% تک اضافہ ہو گیا۔ پاور لوم مالکان ڈٹ گئے۔ صنعتوں کے شہر فیصل آباد میں گزشتہ 8 روز سے پاور لوم مالکان نے کپڑے کی سیل بند کر دی ہے، جس کی وجہ سے کپڑا مارکیٹوں کے تاجر شدید پریشان ہیں۔ ہول سیل کلاتھ سیکٹر کے صدر شیخ فیصل کا کہنا تھا کہ کپڑا 10 سے 15% مہنگا بھی ہو چکا ہے، جس کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ گورنمنٹ کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ سارا معاملات ہو رہے ہیں۔ اگر گورنمنٹ اس سیکٹر کو توجہ نہیں دے گی تو مزید جیسے آٹا بحران ہوا، جیسے چینی بحران کا شکار ہوئی، ایسے ہی کپڑا بحران کی طرف چلا جائے گا۔ جو کپڑا 10% سے 15% ریٹ بڑھ چکے ہیں، ریٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو بحران ہے نا وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ مارکیٹ میں کام آگے ہی نہیں تھا، کسٹمر میں بائنگ پوزیشن بالکل نہیں تھی، اوپر سے یہ جو پاور مالکان جس کو انڈر کاسٹ مال بیچارے کو بیچنا پڑ رہا ہے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، کام نہ ہونے کی وجہ سے اور مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے اس سے وہ بیچارہ مرتا ہی جا رہا ہے۔ کپڑے کے کاروبار سے منسلک دکاندار کہتے ہیں کہ پہلے ہی مہنگائی نے جینا مشکل کر رکھا ہے۔ اب کپڑے کی سیل بند ہونے سے کاروبار پر برے اثرات پڑ رہے ہیں۔ حکومت کو اس پر توجہ دینی ہوگی۔ مارکیٹ میں اثرات تو بہت زیادہ منفی پڑ رہے ہیں فضل بھائی، ایسے آگے گاہک کو کنوینس کرنا مشکل ہو گیا۔ ڈائنگوں کے ریٹس بڑھ گئے ہیں، اپنا پاور لومز نے بنا دیے ہیں، یہاں پہ دکانداری کرنا مشکل ہو گئی۔ گاہک تو کنوینس بالکل بھی نہیں ہو رہا۔ آگے کچھ حالات ایسے ہیں کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس کی وجہ سے کاروبار بالکل ٹھپ ہو کے رہ گئے۔ فاقوں پہ لے آئے غریب کو، اور چوری اور کرائم کا اتنا ادھر اضافہ ہو چکا ہے کہ آپ کی سوچ ہے کیا ہے کہ غربت کی وجہ سے عوام بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے، کام ہے کوئی نہیں، اسی وجہ سے غریب بیچارہ بالکل پس کے رہ گیا۔ کپڑے کی سیل بند ہونے سے مارکیٹوں میں کاروبار ٹھپ ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ صنعتوں کے شہر فیصل آباد میں پاور لوم مالکان کی جانب سے کپڑے کی سیل بند ہونے پر کپڑا مارکیٹوں کے تاجروں کی جانب سے شدید پریشانی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین نعیم سلیم کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد۔ اور مہنگائی اس ہفتے بھی تھم نہ سکی۔ ایک ہفتے میں 25 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ٹماٹر 10 روپے، آلو 3، LPG 90 روپے کلو سے زائد مہنگی ہوئی۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے مہنگائی کی مجموعی شرح 14.31% ہے۔ سب سے کم آمدن طبقے کے لیے شرح 15% ہو گئی۔ ملک میں مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا۔ مہنگائی کی شرح میں 1.23% مزید اضافہ ہو گیا۔ مجموعی شرح 14.31% تک جا پہنچی۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری کی۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ حالیہ ہفتے 25 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ انڈے 5 روپے 38 پیسے، زندہ مرغی کی فی کلو قیمت میں اوسط 2 روپے 76 پیسے کا اضافہ ہوا۔ آٹا، گھی، دال ماش، دال مسور، دال چنا اور مٹن بھی مہنگا ہوا۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق بجلی چارجز بھی 19 پیسے یونٹ بڑھ گئے۔ بجلی چارجز 6.38 سے 6.57 روپے فی یونٹ ہو گئے۔ LPG کا گھریلو سلنڈر 90 روپے 31 پیسے مہنگا ہوا۔ سب سے کم آمدن والے افراد کے لیے مہنگائی 15% ہو گئی۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ حالیہ ہفتے 4 اشیاء کی قیمتوں میں کمی، 22 میں استحکام رہا۔ ایک ہفتے میں پیاز 2 روپے 74 پیسے سستا ہوا۔ حالیہ ہفتے کیلے، دال مونگ اور لہسن بھی سستا ہوا۔ ملک میں بڑھتی مہنگائی کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی سڑکوں پر آ گئی۔ پیپلز پارٹی سٹی، ضلع اور تحصیلوں کے عہدیداروں کا ضلع کونسل چوک فیصل آباد میں حکومت کے خلاف احتجاج۔ حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مہنگائی کے طوفان کے خلاف پاکستان پیپل پارٹی سڑکوں پر آ گئی۔ پاکستان پیپل پارٹی سٹی، ضلع اور تحصیلوں کے عہدیداروں نے ضلع کونسل چوک میں حکومت کے خلاف احتجاج کیا۔ سٹی صدر پاکستان پیپل پارٹی نعیم دستگیر خان کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے، غریب مہنگائی میں پس رہے ہیں۔ حکومت کے خلاف ہمارا احتجاج سیاسی نہیں، عوامی محبت میں ہے۔ اس وقت ملک میں جو مہنگائی کا جن لوگوں کو نکل رہا ہے، اس پر احتجاج کرنا اور اس مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے حکومت پر عوامی دباؤ بڑھانا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی ذمہ داری ہے، اور عوام کی جماعت ہونے کے ناطے آج ہم اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے بھرپور احتجاج کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔
احتجاج میں شریک پیپل پارٹی کی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سینٹرل پنجاب خواتین نور النساء کا کہنا ہے کہ عوام پیپل پارٹی کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے۔ پاکستان کی مجموعی صورتحال ہے، جس طرح غریب فاقہ کشیوں پہ مجبور ہے، خودکشیوں پہ مجبور ہے، تو یہ ایک پورا میسیج اس ٹائم عوام میں جا رہا ہے کہ یہ نیازی حکومت، یہ سلیکٹڈ حکومت نااہل ہے، نالائق ہے، اور ایسے علی بابا 40 چور کے ٹولے سے اس ٹائم اگر جان نہ چھڑوائی تو پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ پیپلز پارٹی سٹی، ضلع اور تحصیلوں کے عہدیداروں نے احتجاج کے دوران حکومت کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ ضلع کونسل سے گھنٹہ گھر چوک تک احتجاج کیا۔ احتجاج کے دوران ٹریفک کا نظام بھی بری طرح متاثر رہا۔ کیمرامین ادریس کے ساتھ عمران اسلم، فیصل آباد۔ جنگ میں مسلم لیگ نون کے زیر انتظام مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا مہنگائی کے خلاف احتجاج، شرکا کی مہنگائی اور حکومتی پالیسیوں بارے شدید نعرے بازی، حکومت سے فوری مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے مہنگائی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ پاکستان مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت نون لیگ کے ضلعی جنرل سیکرٹری آصف علی شاہد نے کی۔ ریلی میں ضلعی پارٹی کے عہدیداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ضلعی جنرل سیکرٹری آصف علی شاہد کا کہنا تھا کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات نہیں کر رہی۔ مزدور اور متوسط طبقہ روز بروز مہنگائی کی دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ غریب جو ہے وہ بالکل پس کے رہ گیا ہے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ رکشے والوں کھڑے ہیں، آپ لوگ دیکھ لیں کہ کتنی لائنیں لگی ہوئی رکشے والوں، کیونکہ پیٹرول کی قیمت اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ مطلب ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے۔ شرکا کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات ممکن کرے، ورنہ احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جائے گا۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جنگ۔ نہیں اور سردیوں میں گیس غائب، چنیوٹ میں کھانا پکانے کے اوقات میں گیس کی قلت معمول بن گئی۔ خواتین سوئی گیس پریشر میں کمی سے پریشان دکھائی دینے لگی ہیں۔ موسم سرما کے آغاز میں ہی چنیوٹ کے مختلف علاقوں میں گیس پریشر میں کمی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس سے خواتین کو کھانا بنانے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ مہنگائی عروج پر حکومت پنجاب نے سرکاری ملازمین کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ ہاؤس لون، ایڈوانس سیلری پر مارک اپ کی شرح 5 سے بڑھا کر 10% کر دی۔ مہنگائی کے عروج پر سرکاری ملازمین کے لیے بری خبر۔ جنگ سمے صوبہ بھر میں حکومت پنجاب نے سرکاری ملازمین کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ ہاؤس لون، ایڈوانس سیلری اور مارکس کی شرح 5 سے بڑھا کر 10% کر دی گئی۔ مارک کی شرح رواں مالی سال کے اختتام تک برقرار رہے گی۔ مارک میں اضافے سے نہ صرف سرکاری ملازمین کو مالی مشکلات میں اضافہ ہوگا، بلکہ پہلے سے ایڈوانس سیلری حاصل کرنے والے ملازمین کو بھی اضافی رقم ادا کرنا پڑے گی۔ حکومت پنجاب کی جانب سے محکمہ اکاؤنٹس کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جیلوں میں بے یار و مددگار قیدیوں کی مفت قانونی معاونت کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر آئی جی جیل نے پنجاب بھر کی جیلوں کے سپرنٹینڈنٹس کو مراسلہ جاری کر دیا۔ پنجاب بھر کی جیلوں میں مستحق اور بے یار و مددگار قیدیوں کو مفت قانونی معاونت فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر آئی جی جیل مرزا شاہ سلیم بیگ نے جیلوں کے سپرنٹینڈنٹس کو تحریری احکامات جاری کر دیے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ سیشن جج اور بار کونسل کے تعاون سے ان احکامات کو یقینی بنائے، جبکہ تمام بے یار و مددگار قیدیوں کے ساتھ مل کر تعاون کیا جائے۔ ایف ڈی اے نے ورک چارج ملازمین کی 1.5 کروڑ روپے سے زائد تنخواہ دبا لی۔ 135 ورک چارج ملازمین 6 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ بیشتر ملازمین نے نوکری بچانے کے لیے موقف دینے سے بھی انکار کر دیا۔ فیصل آباد ڈیولپنگ اتھارٹی میں کام کرنے والے 135 ورک چارج ملازمین 6 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ ایف ڈی اے نے ورک چارج ملازمین کی 1.5 کروڑ سے زائد تنخواہ دینی ہے۔ سی بی اے جنرل سیکرٹری کا کہنا ہے کہ معاملے پر انتظامیہ سے رابطے میں ہیں۔ ہماری درخواست بھی ہے کہ ہم انتظامیہ سے اس سلسلے میں 2-3 میٹنگز کر چکے ہیں۔ آج ہماری پھر انشاءاللہ میٹنگ ہے کہ اس کو ذرا پروسیس کو اور تیز کیا جائے، اور جو ملازمین کی تنخواہ کا مسئلہ ہے اس کو فوری طور پر حل کیا جائے۔ جو سیلریز ان کو نہیں مل رہی، اس کے لیے آج ہم نے ڈی جی صاحب سے ملنا ہے کہ ان کی سیلریز جو ہیں وہ ریلیز کی جائیں، اور باقی جو کام ہے اسمبلی وہ لاہور موو کر دی جائے۔ ایف ڈی اے کے مطابق 42 ورک چارج ایف ڈی اے سٹی، جبکہ 90 سے زائد ورک چارج ملازمین ایف ڈی اے ہیڈ کوارٹر اور انفورسمنٹ ٹیم کا حصہ ہیں۔ ڈی جی ایف ڈی اے کے مطابق ورک چارج کو ورک مین بنانے کے لیے حکومت کو سمری بھجوا دی گئی ہے۔ گورنمنٹ کی پالیسی آئی تھی ورک مین کی، ہمارے پاس اس وقت تقریباً 180 یا 181 جو ہیں ورک چارج امپلائیز ہیں، اس میں سے کوئی تقریباً 90 کی لسٹ ہے، وہ ہم نے آج فائنلائز کر کے ان کے ڈاکومنٹ اسکروٹنائز کر کے ان کی بینک سٹیٹمنٹس دیکھے کہ 9 مہینے کی تنخواہ آئی ہوئی تھی، وہ آج ہم نے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کو اپنی ریکمنڈیشنز کے ساتھ بھیج دی ہے، اور فائنانس ڈپارٹمنٹ اس کی اپروول دے گا، اور انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 1 or 2 ویکس ان کی جو وہ ورک مین بن جائیں گے۔ باقی جو لوگ رہ گئے
उनके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम कोई कंपनी हायर करेंगे और उनके थ्रू हम सर्विसेज लेंगे, तो वही प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है। बेशतर आरजी मुलाजमीन ने नौकरी जाने के खौफ से तनख्वाहों के मामले पर बात करने से भी इनकार किया। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। टोबा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल समेत दीगर अहम सीटें 1.5 साल से खाली। इंफॉर्मेशन ऑफिसर की आसामी भी 7 साल से तैनाती की मुंतजर है। इंतजामिया तमाम ओहदों पर एडिशनल चार्ज के जरिए काम चला रही है। सिंह में अहम इंतजामी ओहदे तवील अरसे से खाली। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की आसामी 1.5 साल, जबकि सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की आसामी 6 माह से खाली है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस की आसामी 1 साल से, जबकि इंफॉर्मेशन ऑफिसर की आसामी 7 साल से तैनाती की मुंतजर है। जबकि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की आसामी पर 8 माह से तैनाती न हो सकी। इंतजामिया ने तमाम ओहदों पर एडिशनल चार्ज देकर कारोबार जारी रखा हुआ है। अफसरान की कमी के बायस शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का कहना है कि आला हुक्काम को खाली आसामियों के हवाले से आगाह कर दिया है। अफसरान की बाकायदा तैनाती का इंतजार कर रहे हैं, जबकि रोजमर्रा के काम जारी रखने के लिए मुख्तलिफ अफसरान को एडिशनल चार्ज दिया गया है। लालिया की आवाम के लिए खुशखबरी, खूनी रोड अब बनेगा डबल रोड। पहले मरहले में सड़क के साथ जमीनें खरीदने, यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम होगा। जमीनों की खरीदारी के लिए तैनात पटवारी इराजी रिकॉर्ड सेंटर लालिया पहुंच गए। लैंड एक्विजिशन के लिए एसी लालिया को खत लिख दिया गया है। टोबा टेक्सिंग की आवाम के लिए अच्छी खबर। एमपीए सईद अहमद सईदी की काविशें रंग ले आईं। हुकूमत ने 25 करोड़ रुपए की लागत से पैरामेडिकल कॉलेज की मंजूरी दे दी है। टोबा टेक्सिंग में एमपीए सईद अहमद सईदी की काविशों से हेल्थ के लिए बड़ी खबर आ गई। हुकूमत ने 25 करोड़ रुपए की लागत से पैरामेडिकल कॉलेज की मंजूरी दे दी। 3 साल के अरसे में डीएचक्यू के सामने 2 एकड़ से ज्यादा जगह पर बिल्डिंग बनाई जाएगी। एमपीए सईद अहमद सईदी का कहना है कि अवाम की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए मंसूबे को यहाँ लेकर आए हैं। पंजाब ने खसूसी ग्रांट से मंसूबे की मंजूरी दी। टोबा टेक्सिंग में ट्रॉमा सेंटर, बर्न यूनिट, डायलिसिस यूनिट और इसके साथ साथ एक हैवी वेट प्रोजेक्ट जो कि कल अप्रूव्ड हो चुका है, पैरामेडिक्स कॉलेज। ये टोबा टेक्सिंग के अवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एमएसडीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर शहबाब आलम का कहना है कि मंसूबे के बाद हेल्थ समेत बेशतर नौकरियां लोगों को मुहैया हो सकेंगी। इसके बनने से आपके डिस्ट्रिक्ट टोबा के जितने भी पैरामेडिक्स के ये 12 शोबे बनते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे बच्ची हैं, वो उनको टोबे से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फैसलाबाद या लाहौर नहीं जाना पड़ेगा और उनको अपने होम सिटी के अंदर ही इस लेवल के ऊपर अच्छी सहूलत मिल जाएगी। शहरियों की जानिब से भी मंसूबे को खुशाइन करार दिया गया। इनका कहना था कि टोबा की बेहतरी के लिए मजीद मंसूबे जरूरत है। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। झंग में अब मिलेगी सैरो तफरी की सहूलियात। 32 एकड़ पर फैले चनाब पार्क होगा एक बार फिर आबाद। इंतजामिया को पार्क की हालत का ख्याल आ ही गया। तज़ीनो आराइश शुरू, पार्क में नए बेंच रखे जाएं। झंग में चनियोट रोड पर वाक़या चनाब पार्क 32 एकड़ रकबे पर फैला है। झंग के बड़े तफरीही पार्क को अरसा दराज से नजरअंदाज किया जा रहा है। शहरियों के लिए अच्छी खबर है कि जिला काउंसिल के चीफ ऑफिसर अकरम भरवाना ने तज़ीनो आराइश का काम शुरू करवा दिया है। डिस्ट्रिक्ट झंग का सबसे बड़ा पार्क है और ये एक अरसा दराज से इसको निगलेक्ट किया जाता रहा है। साबका दवार में इस पर कोई खातिर खा पहले कोई काम नहीं किया जा सका, तो अब हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल झंग के वसाइल बरूए कार लाएंगे ताकि लोगों को सैर व तफरीह के लिए यहाँ झंग में अच्छी सहूलतें वो मैसर हो सकें। चनाब पार्क में ट्रैक पर लाइट लगाई जाएंगी, जबकि नए बेंचेस भी पार्क में रखे जाएंगे। इसके साथ साथ पार्क की 4 दीवारी की तामीर और मुरम्मत भी जिला काउंसिल के फंड से की जाएगी। रात को आने तो लाइटा नहीं होंगी, अगर रात को लाइटा लग जाए तो ज्यादा मसला यानी कि बेहतर हो जाए। तो जिला काउंसिल के बहाल होने नाल ये बड़ी खूबसूरती बढ़ गई है जी। पार्क की तज़ीनो आराइश के काम पर 100 से ज़ायद मुलाजमीन की ड्यूटियां लगा दी गई हैं, जबकि मुस्तकिल तौर पर भी 10 मुलाजमीन चनाब पार्क में ड्यूटी देंगे। चनाब पार्क में आने वाले शहरियों का कहना है कि टोल प्लाजा पर पर्ची फीस माफ की जाए ताकि बआसानी तफरीह के लिए आ सकें। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। चिनियोट की म्यूनसिपल इंतजामिया बुखलाहट का शिकार। मुख्तलिफ चौक चौराहों समेत बाईपास रोड पर लगे कचरे के ढेर इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगे। आलूदा और ताफुन ज़दा माहौल से रिहायशियों ने सर पकड़ लिए।
म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने चनियोट शहर को कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया। मुख्तलिफ चौक चौराहों समेत बाईपास रोड्स पर कचरे के ढेर लग गए। कॉर्पोरेशन का अमला कचरा डंपिंग साइट की बजाय मेन शाहराहों पर फेंकने में मसरूफ है। शहर से सारी आलूदगी निकाल के ना इधर रोड के ऊपर बाईपास के ऊपर जो है ना मतलब इन्हें वेस्ट किया जाता है। इसके लिए बाकायदा इकदाम होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे इसको वेस्ट करना चाहिए। इस तरह लोगों का रास्ता आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। आलूदा और ताफुनज़दा माहौल में शहरियों का सांस लेना मुहाल हो गया है। मोहल्ला दिलखुशाब, मोहल्ला गफूराबाद और मोहल्ला जड़कन समेत जंग रोड बाईपास पर कचरे के ढेर लगे हैं। रहायशी इमाम मस्जिद का कहना था कि शहर में कचरा जमा होने से सारा माहौल ताफुनज़दा हो गया है। नमाज पढ़ने आते हैं तो वो बड़े परेशान, उनका वुज़ू आती है और नमाज भी सही तरह से नहीं पढ़ सकते। सबकी सर में दर्द और बुखार की अलामत जो है वो ज़ाहिर हो रही है। इंतजामिया को चाहिए कि वो इधर से ये गंद हटाएं और इधर सफाई का इंतजाम करें। दूसरी जानिब एमसी अमले ने कचरे के ढेरों को आग लगाना भी मामूल बना लिया है, जिससे उठने वाला तापुन और जहरीला धुआं बीमारियों का सबब बन रहा है। चनियोट के वासियों ने सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कमिश्नर फैसलाबाद से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ बाबर मनीर, सिटी 41 चनियोट। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। ट्रैफिक पुलिस ने बार बार कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लाइसेंस कैंसिल करने का फैसला कर लिया। बड़ी खिलाफ वर्जियां करने वाले 190 से ज्यादा लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस ने कवानीन की बार बार खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद का ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने का इंदिया दे दिया। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद का कहना था कि मुतअद्दिद बार एक ही खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। रवा बरस भी खिलाफ वर्जी को बार बार दोहराने वाले 190 से जायद अफराद के लाइसेंस कैंसिल किए गए, जबकि फील्ड ऑफिसर कानून की खिलाफ वर्जी को देखते हुए लाइसेंस मनसूख करने की सिफारिश करेगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी को देखते हुए लाइसेंस कुछ वक्त के लिए भी मुअत्तल किए जाएंगे और बड़ी खिलाफ वर्जी पर लाइसेंस मुस्तकिल मनसूख होंगे। ओवर स्पीडिंग करने वाले हो जाएं होशियार। हादसात को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस झंग मुतहरिक। डीआईजी ट्रैफिक पुलिस ने डीएसपीज को रोजाना 4 घंटे स्पीड कैमरों से मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी। झंग में ट्रैफिक हादसात कंट्रोल करने के लिए पुलिस मुतहर्रक हो गई। ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड कैमरों से मॉनिटरिंग शुरू कर दी। आईजी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सूबा भर के तमाम डीएसपीज को रोजाना 4 घंटे कैमरों से मॉनिटरिंग की हिदायत जारी की गई है। डीएसपी ट्रैफिक खालिद कुरैशी का कहना था कि ओवर स्पीड पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। हादसात की रोकथाम के लिए पुलिस मुतहर्रक है। ये न सिर्फ चनियोट रोड नहीं, ये एक्सीडेंट प्रोन एरियाज ये हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं और उसी के मुताबिक हमारी ड्यूटी होती है। ये शेड्यूल्ड है हमारी चेकिंग, और इसमें जो ओवर स्पीड व्हीकल्स हैं उनके खिलाफ ना सिर्फ वार्निंग बल्कि इनके चलान भी किए जाते हैं, फाइन किए जाते हैं। डीएसपी ट्रैफिक खालिद कुरैशी ने मुलाजमीन को हिदायत की कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। सीपीओ फैसलाबाद का फराइज में गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ एक्शन। एसएचओ इंचार्ज चौकी मुअत्तल। दूसरे एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया। एसएचओ मिल्लत टाउन आबिद जट को गफलत बरतने पर, जबकि इंचार्ज चौकी सिद्धूपुरा यासिर अली को नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल किया गया। एसएचओ गुलाम मोहम्मद आफ्ताब वसीम को भी गफलत बरतने पर ओहदे से हटा दिया गया। इंस्पेक्टर्स के ओहदों पर तरक्की पाने वालों के लिए आरपीओ दफ्तर में तकरीब। आरपीओ इमरान महमूद और सीपीओ इंस्पेक्टर डॉक्टर आबिद खान ने सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वाले 11 इंस्पेक्टर्स को प्रमोशन बैजेस लगाए। सब इंस्पेक्टर के ओहदों पर तरक्की पाने वालों के लिए आरपीओ दफ्तर में तकरीब का एहतमाम किया गया। आरपीओ इमरान महमूद और सीपीओ डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने प्रमोशन पाने वाले इंस्पेक्टर्स को बैजेस लगाए। भवाना के शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी के लिए खुली कचहरी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चनियोट बिलाल जफर शेख ने शहरियों के मसाइल सुने। डीएसपी भवाना मोहम्मद आजम वाघा भी इस मौके पर मौजूद थे। थाना भवाना में डीपीओ बिलाल जफर शेख ने खुली कचहरी से साइलिन के मसाइल सुने और हल के लिए अहकाम जारी किए। डीएसपी भवाना मोहम्मद आजम वाघा, एसएचओ भवाना मोहम्मद अजमल समीजा, एसएचओ थाना लंगराना बाबर नवाज हुंदल समेत तमाम तफ्तीश अफसरान भी शरीक हुए। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं झंग में लोकल गवर्नमेंट का यूनियन काउंसिल्स में तैनात सेक्रेटरीज के लिए अहम फैसला। सेक्रेटरी कम्युनिटी डेवलपमेंट और टेक्निकल को चार्ज संभालने और ज्वाइनिंग रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की है। महकमा लोकल गवर्नमेंट झंग की जानिब से यूनियन काउंसिल्स में तैनात सेक्रेटरीज के लिए अहम फैसला किया गया। सेक्रेटरीज कम्युनिटी डेवलपमेंट और टेक्निकल्स को फौरी मुतल्लिका यूनियन काउंसिल्स में चार्ज संभालने और ज्वाइनिंग रिपोर्ट महकमे को जमा करवाने की हिदायत की गई है। 91 यूनियन काउंसिल्स में 250 से ज्यादा सेक्रेटरीज और दर्जा चाहरों के स्टाफ को ड्यूटी पर तैनात किया गया।
सेक्रेटरीज के अलावा दर्जा चहारम के मुलाजमीन को भी रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई है। फैसलाबाद मेयर मोहम्मद रजाक मलिक की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की खवातीन अरकान के वफ्द से मीटिंग। खवातीन अरकान ने चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेयर मोहम्मद रजाक मलिक का कहना है कि खवातीन के मुतल्लिका काम तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। मेंबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फरजाना चौधरी, कलसूम अख्तर, राना कौसर सतानी, नुसरत कमोका और दीगर भी शामिल थे। खवातीन मेंबर्स जो हैं वो हमारी स्पेशल सीट्स पे आती हैं। उनका ऐसा कोई यूनियन काउंसिल नहीं होती। उनका ऑफिस उनका जो होल्ड करती हैं या यूनियन काउंसिल कह लें कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही है। उन्होंने यहाँ आके अपनी हर चीज़ जो है लोगों को फैसिलिटेट करना होता है, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही इनका ऑफिस है। तो खवातीन के जो मसाइल हैं उसके हवाले से भी ये डिस्कस करती हैं। इन 2.5 साल के अरसे में जो मसाइल से वो दो चार रही हैं, जो इलाके के मसाइल खवातीन के हैं, उसके हवाले से डिस्कस की है उन्होंने। और वो कोशिश की है उन्होंने कि जो फैसिलिटीज़ वो अपने इलाके के लोगों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले से दे सकते हैं उसके लिए। और कुछ इनके ज़रूरियात के लोग होते हैं हमारे इलाके में जो माजूर हैं, स्पेशल हैं, उनके हवाले से ये आके डिस्कस करती हैं। खवातीन वो जो अपने घरों से नहीं आ सकती बाहर, और सफ़ेद पोश बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो अपने आप को ज़ाहिर नहीं कर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन हम कोशिश करते हैं अपने तौर पर, कॉरपोरेशन के तौर पर, एज ए मेयर भी अल्हम्दुलिल्लाह कि उनके मसाइल सारे हल किए जाएँ। फैसलाबादियों के लिए खुशखबरी, अपना घर बनाने के लिए आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी। FDA ने बैंकिंग सेक्टर के साथ खतो किताबत शुरू कर दी। डायरेक्टर जनरल FDA डॉक्टर फैसल अजीम की सदारत में इजलास हुआ। एडिशनल डायरेक्टर जनरल मलक अजीम और चीफ इंजीनियर शाहद महमूद भी शरीक हुए। DG डॉक्टर फैसल अजीम के मुताबिक फैसलाबाद के बासियों को आसान शराइत पर घर फराहम करने के लिए बैंकिंग सेक्टर के साथ खतो खिताबत कर रहे हैं। डेवलपर्स जो हैं वो अपनी हाउसिंग सोसाइटी को प्रॉपर जब सैंक्शन करवा लें तो उसके बाद वो उसके ऊपर घर भी बना के बेचें। अभी तक ये हो रहा है कि सिर्फ उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, प्लॉट बेचते हैं और निकल जाते हैं, और उसके बाद इंडिविजुअल्स को बैंक्स जो हैं वो ठीक तरह से फाइनेंस करने में घबराते हैं। डॉक्टर फैसल अजीम ने मजीद बताया कि हाउस फाइनेंसिंग के लिए डेवलपर से राब्ते के लिए FDA जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। इकदाम से कम आमदनी वाले अफराद को छत मुयस्सर आ सकेगी। बैंक्स डेवलपर्स या आम आवाम को आसान शराइत पर कर्जा फराहम करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कॉन्सेप्ट हमने लिया नया पाकिस्तान हाउसिंग से, जिसमें हम NAFDA और बैंक ऑफ पंजाब के कंसोर्शियम के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन प्राइवेट डेवलपर्स और बैंक्स का भी आपस में कोलैबोरेशन अगर हो जाए तो हाउसिंग बनेगी, घर बनेंगे। सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं बनेगी बल्कि डेवलपर जो हैं वो घर बना के दे सकते। इजलास में मौजूद डायरेक्टर यासिर एजाज चट्टा समेत दीगर अफसरान ने भी अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ मोहम्मद रमजान रजा, फैसलाबाद। नकीबी कारवान अदब फैसलाबाद के ज़ेर तमाम तकरीब तकसीम इनामात 2019 और 20 में शाया होने वाली मुंतखब अदबी कुतब के मुसन्निफीन के एजाज़ में तकरीब। चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल नईमुल्लाह वड़ाइच, आज़ाद नकीबी, डॉक्टर रियाज मजीद, कबल ऑफ फैसलाबाद समेत दीगर अदबी शख्सियात ने शिरकत की। जिला कौंसिल हॉल में साल 2019-20 की बेहतरीन और मुंतखब किताबों के मुसन्निफीन को अवार्ड दिए गए। तकरीब मारूफ अदबी शख्सियत डॉक्टर रियाज मजीद की सदारत में मुनक्किद हुई। अदबी शख्सियात और मुसन्निफीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौका पर ऑर्गेनाइजर आज़ाद नकीबी का कहना था कि चाहते हैं कि नई नस्ल की किताबों से मोहब्बत हो। ये प्रोग्राम हम हर साल करवाते हैं और पूरे पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया से हमारे पास किताबें आती हैं। इस दफ़ा 5 अवार्ड जो हैं वो मुल्क से बाहर भी दिए जा रहे हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि लोगों को किताबों के साथ जोड़ना, किताबों के साथ जुड़े रहना, यही एक मकसद है। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि लोग किताब पढ़ें, किताबें लिखें और किताबों से फ़ायदा हासिल करें। डॉक्टर रियाज मजीद का कहना है कि किताबें लिखने वाले मुसन्निफीन की काविश को सराहने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया ताकि मुसन्निफीन का हौसला बढ़ सके। तारीख़ अदब उर्दू का जो भी मुहर्रिख होगा, जो भी नक्काद होगा, जो भी मुहक्किक होगा, वो अगर गैर जानबदारी से जायज़ा लेगा तो आज़ाद नकीबी साहब का नाम बड़े सुनहरी हरूफ में लिखेगा कि इस शख्स ने अपने तख्लीकी जौहर के इजहार के साथ साथ अपनी ज़ात को नुमाया करने की बजाय दूसरों के काम को सराहा, उनकी खिदमात का एतराफ़ किया। और इतनी बड़ी तादाद में अवार्ड्स बज़ाहिर ये लगता है कि पता नहीं ये बांटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये 2 साल में जो हमें कोरोना लहर की वजह से कुछ मसाइल का सामना रहा,
2 बरसों में ये तकरीब नहीं हो सकी, वरना हर साल तसलसल जिनसे ये काम करते। तकरीब के शुरका का कहना था कि किताबों को आम आदमी तक रसाई यकीनी बनाने के लिए इकदामात किए जाने बहुत ज़रूरी हैं। कैमरामैन अकील के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद ज़रई यूनिवर्सिटी में किसान कन्वेंशन का इनेकाद। कन्वेंशन वफाकी सूबाई हुकूमत, फातिमा ग्रुप और ज़रई यूनिवर्सिटी के इश्तराक से मुनाकिद किया गया। वफाकी वजीर सैयद फ़खर इमाम, सूबाई वजीर ज़राअत सैयद जहानिया गर्देजी, चेयरमैन पाकिस्तान किसान काउंसिल ताहिर रज़ाक और दीगर ने शिरकत की। की ज्यादा पैदावार के लिए पंजाब हुकूमत सरगर्म हो गई। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में किसानों की रहनुमाई के लिए सेमिनार मुनक्किद हुआ। सूबाई वजीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी ने खसूसी शिरकत। इनका कहना था कि हुकूमत किसानों को सहूलियात देने के लिए कोशां है। किसानों को सब्सिडी देने के लिए किसान कार्ड का इजरा किया। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। फातिमा फर्टिलाइजर की तरफ से भी आपको एक मुकम्मल चार्ट और एक ज़्यादा पैदावार हासिल करने का रोड मैप दिया गया है कि किस तरह आप गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब असद रहमान गिलानी का कहना है कि हुकूमत मजीद किसान दोस्त पॉलिसियों के लिए अमली इक़दामात कर रही है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, किसान महंगाई के दौर में सब्र करे। किसान ज़रई शोबे से वाबस्ता लोगों से रहनुमाई लेकर खाद और बीज इस्तेमाल करे ताकि बेहतर पैदावार हासिल हो सके। इस किसान मेले के तवस्सुत से ये वादा करना चाहता हूँ कि पिछले साल आपको जो गंदम की कीमत मिली है, और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि आपको महकमा खुराक ने और महकमा एग्रीकल्चर ने पूरी कीमत दिलवाई है। आपको जो पहले तंगी होती थी जाके पीआर सेंटर पे, वो तंगी नहीं हुई। इस साल भी हम उसी तरह करेंगे और हम वफाकी हुकूमत से ये कहेंगे कि चूंकि लागत में इजाफा हुआ है, इसीलिए गंदम की इमदादी कीमत में खातिर खा इजाफा किया जाए। किसान कन्वेंशन में वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इकरार अहमद खान, सीनियर नायब सदर पंजाब नंबरदार एसोसिएशन मुदस्सर इकबाल कंबो व दीगर ने भी शिरकत की। कैमरामैन उस्मान के साथ हाशिर हसन, फैसलाबाद।